much for having us in this live session. It's a great opportunity for us and for everyone who are our viewers also. Yeah, thank you very much, Sneha. It's my pleasure to be here and be here and ask about your queries also, that I need to help audience for whatever the questions they must be having regarding COVID. Yeah. So today, as you know, our live session is regarding the aftermath of COVID-19. COVID-19 होने के बाद भी people face कर रहे हैं regarding the recovery after 14 days of isolations also. So there are some general things which we want to know from you and what we should actually take a step regarding it. Okay. So let's start from the beginning. Yeah. So our main thing is like, what are the major things? हमें क्या चीज majorly लेना चाहिए regarding जब हम लोग COVID positive diagnosed होते हैं? Okay. So when you are diagnosed with COVID-19 or you are having some of the symptoms like your fever is there, sore throat is there, the first step should be that you should have self-isolation. तो सबसे पहले तो आपको अपने कमरे में बंद हो जाना चाहिए. The second thing is thermometer. Yeah. Hello, am I audible? Yeah, it's audible. Yes, ma'am. Okay, so you keep on checking your temperature and also your oxygen level. So on the basis like of 2 hours or something. So the criteria is like if you have 95 and above oxygen level, then it is completely safe. There's nothing to worry. And temperature, if it is in the mild case like 100, 99, then also you can just take Dolo. Otherwise, if you have more fever, then you can consult your doctor also. And from 90 to 95 also, there's nothing to worry if the oxygen level goes. But beyond 90, like if it is going 80s में, then again you have to consult the doctor. And then one more important thing is that people are worried कि when they have to do the test done. क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेस्ट immediately हो नहीं पा रहे हैं. So the problem is this कि 2 to 3 days they should wait and then get their test done. अदरवाइज वो ना कई बार फॉल्स रिपोर्ट आ रही है कि नेगेटिव आ जाता है टेस्ट में, तो दे थिंक दैट दे डोंट हैव कोविड एंड दे जस्ट रोम अराउंड, तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं. तो पहला क्वारंटीन करके देन 3 days बाद यू शुड हैव अ चेकअप. Okay, ma'am. But is it necessary to go for CT scan? CT scan? No, not in the initial stage. If you have mild symptoms, like in the starting, then no need to do that. But if it is like 1 week or 5 days when you have taken the antibiotic or the course which is prescribed by the doctor, and the fever is also not going down, and if you have consulted the doctor, then only go for the CT scan. There's no necessary that you take the steps by yourself. It has to be guided by the doctor only. That was the major thing actually. I also wanted to know about it. Like CT scan is important. No, that has a lot of confusion people have. And after 2 to 3 days only they just go and do their CT scan, but it is not at all necessary. Okay, ma'am. And we even also want to know about it. Like what should we have a food appetite? Like what should be our diet chart at that time and what we should consume? Okay, when you are in the quarantine period, like in the 14 periods, when you have 14 days, when you have been diagnosed with the COVID-19, then you should, because you are quarantined or you are self-isolated, so what happens that people don't have proper diet chart or something that they can make themselves. Whatever is given to them, they have to take that. So basically जब आप अपने आप अकेले हो तो what you have to take care कि एक तो आपको water intake आपका maximum रखना है. Hydration is the most important key. क्योंकि जो ये वायरस है हमारा, वो धीरे धीरे हमारा जो पकड़ है वो तभी कम होती है जब हम बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं. क्योंकि ये आपको पता ही है, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है इन्फेक्शन फ्रॉम द नोज, देन थ्रोट, देन इट गोज टू द लंग्स. तो हमें कोशिश करना है कि जितना हम पानी पी सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और स्टीम ले सकते हैं. तो दैट इज द बेस्ट थिंग that you have to do. अगर एकदम से फर्स्ट डे आपको पता चला है कुछ प्रॉब्लम है, तो you have to start doing these things. Then second important thing is कि आपको अपना सूप इनटेक, जो भी आप वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, चाहे आप टमाटो लो, बीटरूट लो, कैरेट लो, कैप्सिकम, these all are rich in antioxidants, और ये सब आपको न्यूट्रिएंट्स ही देंगे. तो ये सब आप मिक्स करके सूप बना सकते हैं. तो सूप इज बेसिकली बहुत जरूरी है. एंड देन हल्दी का मिल्क ऑल्सो यू कैन टेक एट नाइट, क्योंकि आपके कंजेशन को कम करता है.
देन हमें जो चीजों का ध्यान रखना है कि नट्स है, सीड्स है, और एवरी 2 आवर्स में आपको खाना जरूर खाना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ये सोचते हैं कि वो बुखार हो रहा है, फीवर है, तो दे जस्ट लाई डाउन एंड दे डोंट ईट एनीथिंग, दे डोंट फील लाइक ईटिंग। बट अगर आपको ठीक होना है तो मेन थिंग है कि आपको खाना भी जरूरी है और लिक्विड्स भी लेना जरूरी है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है अगर आप बेड पे हो तो। So in short, we have to take the both things generally, yeah, the water intake also, liquid intake also, and the normal food which we used to have. नॉर्मल फूड आप ले सकते हैं और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। Okay, बिकॉज अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कुक्ड फूड में आप क्या क्या लो, दैट इज रिकवरी के बाद जब किचन में आप जा सकते हो, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड, तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। बट अभी के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दोज थिंग्स जो इजीली अवेलेबल है एंड आप इजीली लेकर भी ठीक हो सकते हो। क्योंकि फ्रूट्स में भी आपका पाइनएप्पल है, कीवी है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है इतने रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी एंड मिनरल्स, तो आपको वो जरूर लेना है। इवन जिंक इज वेरी नेसेसरी। तो जब तक आपको ये, तो आप मेरे ख्याल से सब जगह न्यूज में एंड एवरीवेयर इट इज बीइंग देयर कि आपको जिंक एंड विटामिन सी का इंटेक लेना है। तो विटामिन सी जरूरी नहीं है कि आपको टैबलेट फॉर्म में लेना है। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द थ्रोट, तो आप क्या कर सकते हो कि विटामिन सी आंवला के तौर पे भी ले सकते हो। एक आंवला जो अगर आप पूरे दिन में लेते हो तो दैट इज मोर देन योर विटामिन सी टैबलेट का जो असर होता है। तो इसलिए दैट इज वेरी एसेंशियल कि आप फूड से ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। Okay, ma'am. But I have seen few people like after the 14 days of isolation also, there is not such better recovery. They still feel very weak up, and many girls have a problem also. They go for a hair loss issue. Yeah. So when we talk about the 14 days ना, कि आपकी 14 days हो गए हैं and then you are have to, मतलब you are coming out also, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। फर्स्ट सिम्टम दैट यू हैव टोल्ड टेलिंग मी ना कि वीकनेस दिख रही है, टायर्डनेस हो रही है, लोग खड़े होते हैं, खड़े होकर भी चक्कर आ जाते हैं, दे कांट वर्क ऑल्सो इन द किचन। तो जैसे ही काम करते हैं वो 10 मिनट में फिर आके बैठ जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी डाइट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हेल्दी बैलेंस डाइट हमें लेना स्टार्ट करना है। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें बैलेंस डाइट में या न्यूट्रिशियस मील में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज द प्रोटीन। तो प्रोटीन इंटेक आपका जरूर ज्यादा होना चाहिए। तो दैट मीन्स दालें आपको इंक्लूड करनी है, पनीर है, सोया है। जो लोग नॉनवेज या एग खाते हैं वो एग खा सकते हैं। नॉनवेज अभी आई विल नॉट रिकमेंड, बट एग आप ले सकते हो एज ए प्रोटीन सोर्स। इवन नट्स हैं, सीड्स हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो आप पनीर आप घर में बनाते हो तो उसका जो पानी होता है व्हेन यू आर मेकिंग इट, तो उसके अंदर बहुत अच्छा वे प्रोटीन होता है। तो अगर आप उसी प्रोटीन को यूज करके अपना आटे को डो बना लो या दाल में डाल दो उसको, मतलब उसको वेस्ट नहीं करो बल्कि उसको यूज करो, तो आपके अंदर बहुत जल्दी रिकवरी होती है। इवन आई हैव सीन कि मशरूम का सूप भी डज वंडर्स। मशरूम इज अ वेरी सुपर फूड जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड इवन मोरिंगा, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ड्रमस्टिक। तो ड्रमस्टिक जो हमारा जो साउथ इंडियंस खाते हैं सांबर में, तो दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट बॉइल इट, टेक आउट द पल्प, एंड जो आप सूप बना रहे हो उसके अंदर उसको पल्प को डालो। तो ये रिकवरी बहुत जल्दी करने मतलब हेल्प करता है। एंड इवन जब मैंने आपको बताया कि रिकवरी में भी चाहिए तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। देन यू कैन हैव योर कोकोनट वाटर आप ले सकते हो फॉर द रिकवरी। लेमन वाटर ले सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको कितना सोर थ्रोट है। अगर अब कई बार जैसे सेकंड सिम्टम है कि लोगों को अभी भी ड्राई कफ नहीं जा रहा आफ्टर द कोविड ना, तो ड्राई कफ की एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ड्राई कफ के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने मुंह में ना इलायची रख सकते हो, मुनक्का रख सकते हो, एंड यू कीप ऑन सकिंग दैट। तो वो जब वो करोगे तो उससे जो सलाइवा जाएगा तो वो आपके थ्रोट को ड्राई नहीं होने देता। बाकी तो मेडिसिन यू आर टेकिंग, बट आई कैन जस्ट से यू सम ऑफ द टिप्स कि आप अपने थोड़ा सा बॉडी को कैसे हील कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू हैव आस्क्ड मी कि एक्चुअली बिकॉज ऑफ हेयर फॉल ना दैट द वुमेन आर कंप्लेनिंग, दिस इज ऑल बिकॉज जब हम आपने मुझसे वो पूछा नहीं कि एक ब्लड टेस्ट भी कराने बहुत जरूरी होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमें, लेकिन ना हफ्ते बाद लाइक योर 5 to 7 days के बाद ही हमें ब्लड टेस्ट कराने चाहिए अपनी बॉडी के। और उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो है विटामिन D3, देन योर सीरम फेरेटिन लेवल, देन देयर इज अ CR प्रोटीन, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है दैट इज मेनली कंट्रोलिंग, मतलब वो आपको बताता है कि आपका इन्फेक्शन कितना है ब्लड में। देन CBC प्रोफाइल जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट प्रोफाइल होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। ये आपके, और डी डाइमर फॉर द कोगुलेशन की क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही।
ब्लड में, तो दैट ऑल्सो दीज थिंग्स आर इजिली, आप उसको चेक कराओ, लेकिन वो मेनली 5 डेज के बाद। अगर उसमें आपको दिखता है कि सीरम फेरेटिन इज लेस, दैट मीन्स आयरन लेवल जो आपके ब्लड में है वो कम है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। एंड इवन अगर आपका विटामिन डी कम है तो भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि कोविड के बाद लोगों का हेयर फॉल हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे देन ओनली विल एबल टू नो कि ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। बट अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाते रहोगे, और फेरेटिन के लिए आई जस्ट सजेस्ट सम ऑफ द थिंग्स, लाइक आप बीटरूट और आंवले का जूस ले सकते हो। बीटरूट में आपका आयरन बहुत अच्छा होता है और आंवले में विटामिन सी। जब भी आप आयरन को अलोन लेते हो तो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल डू व्हाट दे डू इज कि आयरन की टैबलेट्स ले ली और वो सोचते हैं कि आयरन लेवल सही हो जाएगा। दैट डजंट हैपन। तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। तो जब आप विटामिन सी साथ में उसको कंबाइन करते हो, लाइक जैसे टोल्ड यू कि बीटरूट आप ले रहे हो, आयरन इज देयर, बट विटामिन सी के लिए आंवला लिया आपने, तो जब दोनों का मिला के आपने जूस बनाया देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। या फिर अपने स्प्राउट्स लिए जिसमें विटामिन सी और आपका आयरन दोनों है, बट उसके ऊपर आपने लेमन स्प्रिंकल कर दिया, स्क्वीज कर दिया। इस तरह से आप छोटी छोटी टिप्स अपनाओगे तो वो धीरे धीरे दोनों चीजें आपकी बॉडी में जाएंगे। इवन अगर आपको लेनी भी है सपोज आयरन सप्लीमेंट, तो टेक विद द फूड के साथ आपको लेना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाने के बीच में या तो टैबलेट ले लो या खाना खाते ही टैबलेट ले लो, सो दैट वो आपका जो विटामिन सी फूड में होगा तो आयरन उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। So that are the basic some of the tips. That would be a very helpful thing for all the ladies who is watching us, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स रहते थे रिगार्डिंग दी हेयर फॉल, एंड आई फील कि कल से ही सब स्टार्ट भी कर देंगे वैसे ही इंटेक करना फूड। नहीं, that is very necessary also. Yeah, exactly. And even like some people are going to the food appetite problem also, or they are gaining, or they are having a loss problem of appetite. So what is the exact problem regarding this? Weight, you are asking about weight gain, na? Yes, or weight loss or food appetite actually. Actually ये तो 3 symptoms थे। इसके बाद एक और symptom आता है आफ्टर कोविड, इज या तो लॉस ऑफ एपेटाइट आता है या दे हैव गेन्ड वेट। ये भी एक मेजर सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट इसलिए आता है कि बिकॉज दे हैवंट ईटन, और अभी उनकी रिकवरी का फेज आया ही नहीं है, अभी उनको अंदर से भूखी लगनी स्टार्ट नहीं हुई। तो उसके लिए व्हाट दे कैन डू इज भुना हुआ जो हमारा चना होता है और साथ में गुड़, दोनों को मिक्स करके दे कैन जस्ट ईट। तो उससे भी आपका धीरे धीरे एपेटाइट, क्योंकि चना जो है आपके जो काबुली चने वो जो होते हैं, हम जो चना स्नैक्स में खाते हैं वो, और जब हम गुड़ के साथ खाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी एपेटाइट बढ़ाता है। और दूसरी चीज है, एपेटाइट बढ़ाने के लिए हम 2 आवर्स में खाना हमें जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने आप को 4 5 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो उससे और एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। तो जब आप 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, चाहे आप स्मॉलर मील्स खाओ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे, क्योंकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो सकती है। और एक और सिम्टम मैंने देखा है कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट भी बहुत लोगों को आया है आफ्टर दिस कोविड, और कईयों का तो जा ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो जब हम लॉस ऑफ स्मेल की बात करते हैं तो एक नीलगिरी तेल आता है जिसे यूक्लिप्टस ऑयल भी बोलते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, अपने नॉस्ट्रल्स के यहाँ पर दोनों साइड पे लगा के यू कैन जस्ट हैव अ लॉन्ग ब्रीथिंग। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, धीरे धीरे आपकी जो सेंसेस होती हैं नोज की फॉर द स्मेल, दैट कम्स बैक। बट ये नहीं हो सकता कि एक दिन करा आपने सेकेंड डे सोच लिया कि वो आ जाएगा। इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली फॉर द 3 4 5 डेज, जब तक आपकी स्मेल वापस नहीं आती है। Okay. So and we for can the even go taste, for this with the steam also. स्टीम में भी आप नीलगिरी तेल डालें। तो जैसे आप क्वारंटाइन है तो एवरीबडी सजेस्ट कि हमें स्टीम जरूर लेनी चाहिए, एंड इवन गागल्स भी करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके नोज और थ्रोट के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्फेक्शन वहीं से गया है धीरे धीरे। तो वो आप करते रहना चाहिए रेगुलरली। बट दीज आर ऑल माइल्ड सिम्टम्स के लिए हमारा वर्क करेगा। बट किसी को अगर बहुत ही मेजर सिम्टम्स है या कुछ है तो डॉक्टर से तो आपको पूछना ही है, सारा कुछ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं उस टाइम पे कि उनको क्या करना है, किसी को हॉस्पिटलाइज होना है या कुछ भी करना है तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। बट अगर आपको कोई बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक मत हो, क्योंकि मेनली इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, लोग पैनिक होते हैं और पैनिक की वजह से उनको और प्रॉब्लम्स आ जाती है, पैनिक अटैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो वो हमें नहीं करना। अगर हम नॉर्मली, हमें हल्का सा फीवर है, ऑक्सीजन भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो हमें अपने आप ही आराम से हम ठीक हो सकते हैं। बट हमें 2-3 चीजें और करनी चाहिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए व्हेन यू आर इन कोविड एंड आफ्टर रिकवरी ऑल्सो।
तो उसमें आप लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि आपको ब्रेथ लेनी है, देन होल्ड फॉर द सेकेंड्स एंड देन जस्ट रिलीज द ब्रेथ, तो वो बहुत हेल्प करता है. देन अलोम विलोम इज वेरी गुड. अलोम विलोम जो आपको एक नाक को नॉस्ट्रिल को बंद करके एक से सांस लेके दूसरे से आपको निकालना है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. अच्छा, अब एक होता है कपाल भट्टी, दैट इज ऑल्सो गुड. बट अब कपाल भट्टी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस किस को नहीं करना चाहिए. तो वो होता है जैसे कि आपके हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर बैक पेन है, तो उनको उस पे इस कपाल भट्टी को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. अदरवाइज अगर कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है तो कपाल भट्टी इज ऑल्सो गुड, जहां पे आपको ब्रेथ जो है, मतलब आपको स्टमक को खींचना होता है. यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो, तो वो आप करके देख सकते हो. तो दीज ऑल एक्सरसाइजेज आर वेरी हेल्पफुल इन दैट टाइम. तो ये जरूर करना चाहिए. और माइंडफुल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनली क्या होता है, लोग जो नेगेटिव सोच रहे हैं ना आफ्टर सीइंग द न्यूज, तो वो जो बॉडी से ज्यादा माइंड का गेम है ये. अगर आप माइंड को कंट्रोल करोगे ना, तो अपने आप बॉडी आपके उसमें आ जाएगी कंट्रोल में. तो बॉडी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इट इज गॉन. दैट इज अ मेन थिंग कि माइंड आपको सेंटर में. to know about that also, if you can help us out regarding it. Yeah, that's why I'm saying ना, whenever you are in quarantine also, first आपकी breathing exercises होनी चाहिए. You can do the meditation also. You can talk to friends. जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, अपनी वीडियो कॉल करके आप बात कर लो. अपने आप को थोड़ा चेयरफुल रखना चाहिए. आप जैसे गेम्स नहीं आती आपकी, लूडो हो गई, कुछ भी गेम्स हो गई, आप नेट पे लगाकर अपना गेम्स भी खेल सकते हो. बट डोंट लिसन टू द न्यूज. जब हम न्यूज पे सुनते हैं ना, तो उसमें सारा का सारा एकदम हाइपर जब आ जाता है, तो वो लोगों को और डिस्टर्ब करने लग जाता है, क्योंकि उनको वो पहले से ही क्वारंटाइन है और उस टाइम पे उनको ऐसी न्यूज मिलती है, तो वो और ज्यादा उनके लिए डिप्रेशन हो जाता है. यस मैम. तो इसलिए दैट हैज टू बी स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया इन दिस सेंस. या फिर मूवीज देख लो, सीरियल्स देख लो, जो भी आपके पसंद, जो भी अच्छा लगता है. मतलब यू कैन आराम से आपका टाइम पास हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता. बट ये है कि नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए. बिकॉज इस टाइम पे मैंने देखा है कि लोगों को एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी बहुत जल्दी आ रहा है. आफ्टर दैट ना ये भी रेज हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी एकदम से घबरा जाते हैं. उनको ये लगता है कि बस कोविड हो गया तो अब तो हम बचेंगे नहीं. ये एक नया चीज सुनने में आ रही थी मुझे. तो वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स है तो आप इजीली क्योर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड इवन मैम, एज वी ऑल नो कि अभी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है, सो इफ आफ्टर इन टेकिंग द वैक्सीनेशन, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, जिससे हमें कोविड. अच्छा, जब आपकी वैक्सीनेशन, हाँ, वैक्सीनेशन इज वेरी नेसेसरी. वो तो मैंने बताया भी था पहले भी कि वैक्सीनेशन तो आपको करानी ही करानी है. देयर इज नो वे आउट. वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको जहां पे भी फर्स्ट डोज, लोग अब वेट कर रहे हैं कि कोई कहता है कोवैक्सीन ही लगवानी है, कोई कहता है कोविशील्ड लगवानी है. अब तो यहाँ तक मेरे पास लोगों का आ रहा है कि स्पुतनिक ही लगवाएंगे हम जब वो आएगी रशिया से. इट इज नॉट द केस. जो वैक्सीन मिल रही है आपको वो लगवा लो, क्योंकि वो जरूरी है अभी आपके लिए. बिकॉज उससे क्या होता है, आपकी जो मॉर्बिडिटी रेट्स होते हैं आफ्टर टेकिंग योर मेडिसिन ना, ये वैक्सीन, तो कम हो जाते हैं बहुत. तो उससे क्या होता है, लोगों को इन्फेक्शन अगर होता भी है तो वो बहुत माइल्ड होता है. ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है. हमारे घर में भी हुआ था सबको कोविड, बट बिकॉज ऑफ वैक्सीन जब हमने फर्स्ट डोज ली थी, उसके बाद लोगों को बहुत सिवियर इन्फेक्शन नहीं हुए. इन्फेक्शन हुआ इन अंडर कंट्रोल, माइल्ड सिम्टम्स, एंड देन दे वर ट्रीटेड, मतलब इजिली ट्रीटेड. तो इसीलिए वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेनी है, ताकि आप हॉस्पिटल तो ना पहुंचो, एटलीस्ट घर पे ठीक हो सकते हो. एंड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन, like how should we, our nutrients should go down, like how, what food appetite we should have, what kind of nutrients we should intake. अच्छा, आफ्टर वैक्सीनेशन भी, हाँ, लोग सोचते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो दैट डाइट शुड बी सिंपल. दलिया खा सकते हो आप, नॉर्मल खाना खाना है, बट ये है कि आपको भूखे नहीं रहना. कई लोग क्या करते हैं, स्टार्व कर देते हैं, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है. तो आपको नॉर्मली लाइट फूड खाना है, बट खाना है. जैसे कईयों को मैंने देखा आफ्टर वैक्सीनेशन फीवर भी आ रहा है, बॉडी पेन भी आ रहा है. तो ये नहीं करना कि फीवर और बॉडी पेन आ रहा है, आप उठ ही नहीं पा रहे हो और कुछ नहीं खाओ. फिर आपको और प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी बॉडी में. तो उस टाइम पे आपको जो मिल रहा है वो आप खा सकते हो. इवन आपको अगर रोटी सब्जी भी मिल रही है ना, तो वही खा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी. फ्रूट्स अगर मिल रहे हैं, फ्रूट्स खा लो. बट आपकी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए. उस टाइम पे क्या होता है, जब आप वैक्सीन लगवाते हो तो थोड़ा सा इम्यूनिटी एक बार लो होती है. जैसे कोई भी हम वैक्सीन लगवाते हैं, सपोज टेटनस का भी लगवाते हैं, तो एक बार कईयों को सुना है कि आपने फीवर भी आया है, पेन भी हुआ है, तो उस टाइम पे होता है. बट उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. दैट कैन बी इजिली 2 to 3 days लगता है, देन इट विल गो ऑफ. ये नहीं कि वो लॉन्ग रन में रहेगा. Yeah.
And what kind of supplements we should take at that time? Like, as we know, COVID-19 is going on, so immunity, antioxidant, like it is the most important thing right now. So what Yeah. kind of supplements we should go for? या फर्स्ट थिंग इज द सप्लीमेंट्स के लिए जब हम बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड ना, आई हैव टोल्ड यू कि आयरन लेवल्स लो हो सकते हैं, विटामिन डी के लेवल्स लो हो सकते हैं, इवन प्रोटीन इज मोस्टली रिक्वायर्ड. तो हमें जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए विटामिन डी के लिए, आप अपराइज D3 ले सकते हैं. कैलडी ऑल्सो यू हैव, सियोन कंपनी हैज दिस, सो दैट यू ऑल्सो यू कैन टेक. इवन इवन कैल्सिरॉल डी, जो भी आपको मिलता है वो आपका वंस अ वीक जरूर चलेगा. In the milk only you can just mix the sachet and take it once a week. तो ये आपका धीरे धीरे रिकवर करेगा, because I have seen कि नी पेन या जॉइंट पेन भी बहुत कॉमनली देखा गया है लोगों में. देन जब हम फेरेटिन या आयरन की बात करते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू कि आप फूड सप्लीमेंट फूड ले सकते हो, या फिर आपके जो सप्लीमेंट लिवोजन जेड वगैरह भी आता है. आई थिंक सो सियोन ऑल्सो हैव समथिंग फॉर द आयरन थिंग. यू हैव इट? Yeah, we have spirulina. This is the Spirulina is immunity the booster. Even other I thing. intake this thing. Yeah, spirulina is also very good. I was just coming for that only. But I was just asking कि if iron के लिए भी आपके पास है, तो that also you can easily take. But spirulina is very good because I have also used this. So इसमें आपका 60% के अराउंड आपका प्रोटीन होता है, तो आपकी अच्छी रिक्वायरमेंट मिल जाती है फुल डे में. इवन ये इसके अंदर जो इतने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स कम आती हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड इन दिस स्पिरुलिना. तो ये आपकी बॉडी को बहुत जल्दी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं. तो आप आराम से उसको ले सकते हैं 1 टीस्पून अ डे. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा. बाकी तो आप खाना साथ में खाओ, बट ये कि ये आपका क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स है, वेगन सोर्स है, तो इट इज वेरी सेफ टू यूज ऑल्सो एंड डाइजेस्ट ऑल्सो. तो डाइजेस्टिव के लिए भी बहुत अच्छा है ये. तो और इसमें कोई भी ऐसी हाई कैलोरीज नहीं है स्पिरुलिना में, तो आपको आराम से आपकी सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी. सारे विटामिन बी है, देन आपका सी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ है इसमें. So you can easily take this spirulina also in your diet. Okay, ma'am. And ma'am, we even have some questions from our viewers. So let's just 2-3 questions we will go for at once. Like somebody asked about it, that is exercises can we go for exercise during COVID-19? No. If you are planning to do any exercise during COVID-19 when you are in quarantine or in the recovery period, you should have just light walk. सिंपल वॉक होनी चाहिए, या फिर आप योगा की एक्सरसाइजेस जो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं दैट यू कैन इजीली हैव, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन, प्राणायाम, दीज थिंग्स कैन बी प्रैक्टिस. बट कुछ भी स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी, बिकॉज द थिंग इज क्योंकि ये अटैक करता है जब आपके नोज पे, थ्रोट पे, लंग्स पे. सपोज ये लंग्स तक चला गया तो फिर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी. एंड देन वो जब आपको पता है वैसे भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेथलेसनेस होती है, तो वाई टू इंक्रीज दैट. तो जब आप पूरे रिकवर हो जाते हो, then you can do your proper exercises. No problem for that. Okay, ma'am. It was lovely to talk with you. I hope अगर किसी को कुछ भी question पूछना हो तो just we will have a talk regarding it. Just drop down your questions in the comment section. एक और क्वेश्चन है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड वी डू ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट. तो इट इज लाइक योर 30 डेज. अगर आपका 14 डेज या 15 डेज आपका क्वारंटाइन पीरियड है, एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो यू नीड एटलीस्ट 14 डेज का रेस्ट. जब आपने वो टाइम पीरियड पूरा कर लिया एंड योर बॉडी इज फुली एक्टिव, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे. हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कैन नॉट बी डन कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लो. तो यू कैन डू वन थिंग कि आप फर्स्ट टाइम जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो वर्कआउट, तो सबसे पहले आप ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करो. यू सी कि ब्रिस्क वॉक के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही, देन इट्स ओके. देन धीरे धीरे आप जॉगिंग करो. देन धीरे धीरे आप इसका जंपिंग जैक्स है या जो भी आपकी एक्सरसाइज करते हो, तो इट शुड बी स्लोली इंट्रोड्यूस्ड इन योर दिस थिंग. ये नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में आपने सब कुछ कर दिया कि 30 डेज ओवर हो गए तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं. इट डज नॉट वर्क. Okay. Somebody just asked, like, warm water helps nowadays. Lot of people drink hot water. As बहुत लोग hot water prefer कर रहे हैं, but is warm water is okay or not? Yeah, warm water is okay, but no need to take hot water. क्योंकि वो क्या हो रहा है, अब गर्मी का वेदर हो गया है यहाँ पे सब जगह. तो जब आपका जो हॉट वेदर है उसमें आप बहुत ज्यादा हॉट पानी पियोगे तो वो स्टमक में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. इसलिए बहुत ज्यादा हॉट चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए. बट हाँ, वार्म वाटर इज ओके. अगर आप हल्का वार्म कर रहे हो क्योंकि आपके गले को या थ्रोट को उससे आराम मिल रहा है, तो यू कैन इजीली हैव वार्म वाटर. वार्म वाटर इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, बट हॉट वाटर शुड नॉट बी टेकन.
Okay. And there is one Moringa leaves, more. yes. Can they have consume moringa leaves or not? Yeah, but moringa leaves are very good. So moringa can be Yeah. taken in any form. Moringa का आपका जो मैंने बताया स्टिक आता है, that also you can take. मोरिंगा लीव्स का Yeah. पाउडर भी आता है. तो ये सब चीजें आप सूप में भी ऐड कर सकते हो. ये आपको अलग से एक ऐसी वो पावर देता है ताकि आपका जल्दी हीलिंग हो जाती है. Okay, So that is ma'am. very helpful. I hope everyone have got their answers and they are happy with the answers also. And you have helped us to know about how to do the aftermath of recovery with COVID-19 when they are diagnosed. It was lovely to talk with you and have a great time with you. It was a lovely session also. So, 1-2 questions are also there. Can we yeah, answer there them? are some, yeah, sure. And they are asking for the what time they should go for moringa leaves, what time they should intake. Now, how to overcome nausea also is there. The question is there. Yeah. So when you have nausea feeling, so first thing मतलब nausea कैसे हो रहा है वो depend करता है कि आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो then एक होती है आपकी antacid that you can take in the morning. तो वो आप ले सकते हो. बाकी आपका धीरे धीरे ही हो जाएगा because nausea ऐसी चीज है जो कि आपको इसके सिम्टम की वजह से हुई है. तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. उसमें आपको डाइट में आप लेमन वाटर वगैरह ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर, तो वो धीरे धीरे जाएगा. बट ये है कि नोजिया की वजह से यू डोंट फील ईटिंग, कि आपको खाने का मन नहीं करता उसमें. तो इसलिए आप फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो. अगर आपसे लगता है कि आप नहीं ले पा रहे हो होल ग्रेन्स या खाना नहीं खा पा रहे तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के टाइम में ये ठीक हो जाता है. नोजिया विल गो बट इट विल टेक 1 or 2 days. तो यू कैन इलेक्ट्रॉल ले सकते हो. WHO का जो इलेक्ट्रॉल आता है दैट यू कैन मिक्स विद द वाटर, वो भी आप ले सकते हो. बिकॉज प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बॉडी में पूरा रहना चाहिए. अगर वो नहीं पूरा होता तो उसकी वजह से भी फिर आपको और प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. तो दैट नीड टू बी टेकन केयर. Okay. And even we have moringa leaves in our antioxidant also. Even I intake this one. Yeah, that is a superfood again. Yeah. So 2-3 कई superfoods है हमारे पास. स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, then we have mushroom also. So अगर आप ये सब लेते हो तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है. इवन नट्स एंड सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर हम कहते हैं फ्लेक्सीड, तो अगेन इट इज रिच इन ओमेगा 3. तो अगर आप वो अपने डेली डाइट में ले रहे हो 1 टीस्पून डेली, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. तो ये सब चीजें आपकी सुपरफूड है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए डाइट में. तो दैट हैज टू बी टेकन. Okay. And even there is one question like can we intake coffee once in a day as our immunity? कॉफी इज नॉट अ प्रॉब्लम. कॉफी आप ले सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि कॉफी इज बैड फॉर हेल्थ. वंस अ डे इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड ब्लैक कॉफी भी अगर आपको लेना चाहते हो तो क्या कॉफी इज गुड फॉर योर इम्यूनिटी. इट इज नॉट एट ऑल डेंजरस, बट बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए. वंस अ डे इज ओके, यू कैन इजिली टेक इट. अगर आपको लगता है मिल्क में लेना है तो मिल्क में भी ले सकते हो. एंड अगर आपको लगता है कि आप ब्लैक कॉफी लेना चाहते हो दैट इज ऑल्सो गुड. तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल. So any personal supplements which you can recommend us to help, like we can have it? Come again. I just can't hear you. Any personal recommendation for the supplement which is good for us and we can intake also? Yeah, that I have told you, spirulina that you are providing, that is very good because it has everything in it. So you can take it as a superfood. So there's no harm in taking all these type of things. But that's why I'm saying that you have to take your food intake properly. Then you take these supplements. So तभी वो काम करेगा. अगर आप चाहो कि खाली supplements खा लिया and खाने में तो आपने सिर्फ एक रोटी और सब्जी खाई है दोनों टाइम, then it will not work. तो आपको सारी चीजें मिक्स करके खानी है. प्रोटीन्स भी चाहिए हमें, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, नट्स एंड सीड्स चाहिए. इवन घी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कहो कि घी हम निकाल ही दें डाइट से तो भी आपको प्रॉब्लम आती है. तो घी भी हमारा एटलीस्ट 2 to 3 टीस्पून हमारे पूरे दिन की डाइट में होना चाहिए. चाहे आप उसको तड़का लगा के आप अपनी वेजिटेबल बना लो या फिर आप रोटी पे लगा लो, कैसे भी, बट घी इनटेक इज ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि इसमें भी बहुत विटामिन ई एंड रिच बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की हीलिंग के लिए. Yes, ma'am, exactly. So it was a lovely session with you. Thank you, ma'am, so much for being here and giving your time to us. Thank you very much. Thank you, ma'am. And